Hi guys, welcome back. So today in this lecture we'll be discuss about how to display records in a data table and by using screen flow. Let's take an example and see how we use that. Okay, let's say I have an account object, and in the account object when I click on like this account, Burlington Textile Corporation of America. So in the related field, sorry, in the related field I have an opportunity, okay, that is linked with that is relationship between the account and opportunity. And in this opportunity I have linked four account, that is textile Bulletin textile weaving plants generator, test opportunity 1 and test opportunity 2. See, when I click on new, see, account will be automatically linked, okay. And just I add one more opportunity, that is text op 3, okay. And just add something, close state will be here, and need analysis and click save, okay. So see, there are 1, 2, 3, 4, 5 opportunities are there which is linked with this account, okay, correct, got my point. I want that my requirement is that when I create a screen flow, and he wants that the requirement was that, see, these are to be displayed in a table, and I want to bulk update the record which which whichever in any state, like decision makers, need analysis, anything, value proportion. I want to update the stage, so that you can able to select the record which you want to update the record stage and select save. These stages are to be updated by a bulk, whether you want to just click this over this, and you want to just go to manually and select mark stages, yeah, closed one, okay. But I want that just bulk update the record, so that you can able to without clicking the opportunity object. See, without clicking the opportunity object, you want to bulk update all the accounts which is opportunities which is related to the account. Got my point? What I'm saying? Okay. So how to do this? See, how to do this? Okay. So let's create a screen flow and see how to do it. So firstly, logic. What was the logic behind this? The firstly logic behind this, I have to store the record ID of the account firstly, okay, so that it will be linked to the your opportunity. That is, account will be linked to the opportunity, whichever account ID record linked with the n number of opportunities. So these are to be fetched, okay. So firstly, I have to store the record ID in a variable. After that, what I do, I used element, that is get record, which is record ID is linked with opportunity. Then all the opportunity which is linked with the account, it will be fetched, okay, from the database. After this, I created a screen flow, that is in a screen that is in the data. I use a data table that, so to show the records which is fetched already. After that, looping the record, and which is number of selected, and update the record. These are the steps, okay. So firstly, I go to quick find what and search flow, and click on this flow. Just click new flow and start from scratch, click next, and screen flow, click create, okay. So your screen will be displayed in the canvas, and just change to pick selector bar to the freeform, okay. After this, here is the manager tab. Click on this tab, click new resource. Firstly, I want to store the record ID of the account. So I take a variable, and I want to store the record ID of the account, and display default value empty string, that is constant empty string. And for the as a best practice in flow, available outside the flow, that is check both available for input, available for output also, okay. So I created a record ID for the variables, which is storing the account ID. After this, I create another variable for a collection, so that n number of opportunity IDs are stored. So let's say
in one account, let's say what is the first account, Burlington Textile Corporation of India, and there are 5 opportunities are linked. These opportunities are to be stored in another variable, which is type of collection variable. Got my point? So I want to store the variable opportunity where of IDs, and in this where of IDs I want to store in the text variable, which is like multiple variables, collection variable. See, a collection variable stores multiple values of the same data type or records of the same object, and in an ordered list to iterate over a collection variable using a loop element. That's why it allows the multiple values. It means it stored all the IDs which is related to the account. Got my point? All the opportunities IDs available for input, available for output. Click done. So see, collection variable where the opportunities IDs and variables that is record ID. So I think you have no doubt from here. So go to auto layout, change the positions, loose positions. See, yeah, screen flow. Here is the plus tab. Click the add element and just get the record, get the opportunity record which is linked with the account object. So get opportunity get opportunity record, and in this opportunity record get which type of objective. This is the opportunity record. So just select the opportunity, and in the opportunity, see opportunity ID. I have an opportunity I have a field which is a lookup relationship. Let's say it is a lookup or it's the master detail. Just click the opportunity. Click on this and go to setup, and this is edit object. Click on this. Go to field and relationship and account, search account. See, it's a lookup relationship. See, it's a lookup relationship to account. Okay, account ID, field name, and field level is account name. So that's why it whenever you click on the new button for the in the account, when you click on the new button, see, when I click on the new button in the account, this will be linked automatically. Got it? So it is a lookup relationship between the opportunity and the account, and here account ID. अब मैं अकाउंट आईडी किस में स्टोर कराया था? गॉट में तो पहले मैंने बनाया था एक वेरिएबल जो कि रिकॉर्ड आईडी होगा, इसमें रिकॉर्ड आईडी स्टोर करा। सपोज करो तो मैंने क्या किया, एक अकाउंट जो अपॉर्चुनिटी के अकाउंट आईडी लुकअप रिलेशनशिप है, उसमें मैंने अपनी जो रिकॉर्ड आईडी जो मैंने स्टोर कराऊंगा वो इसके साथ लिंक्ड हो जाएगा। तो सपोज करो एक अकाउंट पे 5 अपॉर्चुनिटी लिंक्ड है, तो पांचों की चीज़ें निकल के आ जाएंगी। गॉट माय पॉइंट? कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड इज क्लोज नहीं होना चाहिए सबसे पहले चीज, इक्वल्स फॉल्स एंड ऑल रिकॉर्ड्स। अब भी देखो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स टू स्टोर, जितने भी अकाउंट आईडी अपॉर्चुनिटी में अकाउंट आईडी, सपोज कर लो एक रिकॉर्ड आईडी है दैट इज दिस वन, ये इसकी रिकॉर्ड आईडी है, ठीक है, ये रिकॉर्ड आईडी है, ये रिकॉर्ड आईडी बुर्लिंगटन टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। अब इसकी रिकॉर्ड आईडी सब में है, इसमें भी 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 है, ठीक है, दिख रही है। जो मैं खोल के अगर दिखाऊं तो सबको देखो, डिटेल्स पे जाओ, ये देखो लिंक्ड है, सेम रिकॉर्ड आईडी, ये भी लिंक्ड है, ये भी लिंक्ड है, ये लिंक्ड है सारे अकाउंट। तो एक रिकॉर्ड आईडी में 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड लिंक्ड है। तो ये क्या करेगा, जब मैं ऑल रिकॉर्ड करूंगा यहाँ पर तो पांचों रिकॉर्ड लेकर आएगा जो लिंक्ड है। सब कोई दूसरा खोलूंगा उसमें सपोज 2 ही रिकॉर्ड लिंक्ड है तो 2 रिकॉर्ड लेके आएगा। किसी और आईडी का खोलूंगा उसमें जो रिकॉर्ड लिंक्ड होगा वो रिकॉर्ड रिट्रीव करके लेके आएगा। इसलिए मैंने कंडीशन कर दिया, अकाउंट आईडी जो लिंक्ड है रिकॉर्ड आईडी से वो सारा फेच करके लेके आएगा, और क्लोज नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज इज क्लोज इक्वल फॉल्स, एंड ऑल रिकॉर्ड होना चाहिए ऑटोमेटिक स्टोर। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सॉरी। ओके, आफ्टर दिस
आई वांट टू, अब तो मैं रिकॉर्ड लेके आ गया, डेटाबेस से पूरा फेच करके लेके आ गया कि जो भाई अकाउंट आईडी लिंक्ड है वो सारा फेच करके। आफ्टर दिस अब मैं क्या करूँगा, अब मैं स्क्रीन बनाऊंगा, एक स्क्रीन में डेटा टेबल डालूंगा। ओके, एंड स्क्रीन का नाम दे दूंगा लेट्स से डेटा टेबल। ओके, डेटा टेबल स्क्रीन। ओके, डेटा टेबल स्क्रीन। एंड इस डेटा टेबल का अब एपीआई नेम डेटा टेबल डाल दो। मैं एक लेवल डालूंगा जो डेटा टेबल फॉर अपॉर्चुनिटी लिंक्ड विथ अकाउंट। ओके, मैंने एक हेडर में डेटा टेबल फॉर अपॉर्चुनिटी लिंक्ड विथ अकाउंट, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ तो कोई दिक्कत, यूज़ लेबल एज ए टाइटल, मैंने लेबल डाल दिया। अगर इसको रिमूव करना है तो वो रिमूव हो जाएगा, अगर टिक करना है तो लेबल की तरह दिखेगा फॉर्मेट में। मैंने लेबल डाल दिया, ठीक है। आफ्टर दिस कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स। अब ये डेटा सोर्स कहाँ से तुम कलेक्शन कहाँ से लेके आ रहे हो, कहाँ से ये डेटा आएगा, तो ये आएगा जब मैंने गेट रिकॉर्ड किया था, यही था अपॉर्चुनिटी फ्रॉम गेट अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड, यही था अपॉर्चुनिटी फ्रॉम गेट अपॉर्चुनिटी। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये सारा ये क्या करेगा, वहाँ से डेटा जो मैंने इसके पहले गेट रिकॉर्ड कर रखा है वो सारा डेटा, सपोज करो 5 डेटा लेके आया तो 5 डेटा इसमें लाके कलेक्शन में डाल दिया। करेक्ट, सोर्स कलेक्शन क्या है, सो सर्च फॉर और नॉट, यू वांट टू शो द सर्च फॉर, जस्ट क्लिक ऑन दिस, यू डोंट वांट जस्ट रिमूव दिस। ओके, सो ये हो गया आपका कॉन्फ़िगर रोज। अब रोज में रोज सिलेक्शन मोड क्या होगा, मल्टीपल होगा, सिंगल होगा, व्यू ओनली। अगर व्यू ओनली रखोगे तो उसमें क्या होगा, सिलेक्शन जो होगा वो चीज़ें तुम्हारा नहीं होगा, मतलब सिर्फ तुम डेटा व्यू कर सकते हो ना, तुम इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे, टिक भी नहीं कर पाओगे, एडिट भी नहीं कर पाओगे, यू हैव नाइदर परमिशंस। सिंगल में क्या होगा कि एक ही रिकॉर्ड, जब 10 रिकॉर्ड लेके आया 10 में सिर्फ एक ही सिलेक्शन कर सकते हो। अगर मल्टीपल पर टिक किया तो 10 में से 10 सेलेक्ट कर सकते हो, और मल्टीपल में कितना सेलेक्ट कर सकते हो, नीचे ऑप्शंस दिया है, मैक्सिमम सिलेक्शन, मिनिमम आप एक करोगे, मैक्सिमम जितना भी हो, अगर लिव इट बाय तो मैक्सिमम जितना भी आप कर सकते हो। अगर आपने कंडीशन सेट कर दिया कि मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 8 होना चाहिए, सपोज करो 10 रिकॉर्ड लेके आया तो आप 8 ही सेलेक्ट कर सकते हो, 2 नहीं सेलेक्ट कर पाओगे, फिर मतलब 2 आपका बच जाएगा, 8 ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, उन 10 में से सिर्फ 8 सेलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज द sorry, this is the selection mode of the configuration rules. Okay, so I don't want to mention anything, I want to just like minimum selection 1 होना चाहिए, maximum कुछ भी होना चाहिए, मुझे नहीं पता, अगर 20 है तो 20 सेलेक्ट मैं कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए। करेक्ट, ओके, सो डिफॉल्ट सिलेक्शन लिव इट ब्लैंक, अगर कुछ डिफॉल्ट सिलेक्शन चाहिए तो ठीक है, नहीं तो रहने तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। कॉन्फ़िगर रोज। अब रोज में डेटा टेबल के रोज में क्या क्या दिखेगा, ये रोज में क्या क्या दिखेगा, तो सबसे पहले आपके रोज में अकाउंट नेम दिखना चाहिए। ये देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा कस्टम, ये वाला जब मैंने क्लिक किया तो ये कस्टम लेवल, कस्टम लेवल, मान लो मुझे नेम मज़ा नहीं आ रहा है, मैंने चलो इस पर टिक करा तो नेम आ गया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है कि नेम क्या है, अपॉर्चुनिटी नेम अच्छा लग रहा है देखने में, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नेम डाल दिया एंड कस्टम लेवल टिक मारना, टिक मारा, जब मैंने डन किया तो देखो कहाँ गया, नहीं सॉरी, अपॉर्चुनिटी नेम कस्टम लेवल पर, सॉरी ओके, यहाँ पर क्यों मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पर तो नेम होगा ना सोर्स फील्ड में, एंड लेबल यहाँ पर होगा, यहाँ पर लेबल होगा ओके, अपॉर्चुनिटी नेम, ये देखो नेम चेंज होगा, पहले नेम आया था, मैं सोचा कि नेम समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का नेम है, तो मैंने अपॉर्चुनिटी नेम डाल दिया, सो दैट बढ़िया दिख रहा है। ओके, लेट्स से अपॉर्चुनिटी नेम के बाद अमाउंट, अगर यू वांट टू चेंज द नेम तो यहाँ पर होगा अपॉर्चुनिटी अमाउंट। ओके, जस्ट क्लिक दिस, अपॉर्चुनिटी अमाउंट आ गया। यू वांट टू ऐड क्लोज डेट,
एंड आई वांट वन कॉलम और जो स्टेटस होगा, स्टेज नेम, ठीक है, स्टेज नेम मैंने सेलेक्ट किया एंड कस्टम लेबल का ऑफ स्टेटस, ओके, अपॉर्चुनिटी स्टेटस, ठीक है। सेट कंपोनेंट विजिबिलिटी, अगर मुझे किसी कंडीशन में दिखाना है तो ये भी मैं कर सकता हूँ, कंडीशन विजिबिलिटी में अभी तो ऑलवेज है, चेंज कर सकते हो। एंड और लॉजिक, कोई तुम्हारा लॉजिक हो तो वो लॉजिक भी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, उस बेसिस पर आप कंपोनेंट विजिबिलिटी यूज़ कर रहे हो। कुछ वैलिडेट इनपुट कराना है, एरर मैसेज वगैरह कुछ भी, तो उससे आप फॉर्मूला वगैरह यूज़ कर सकते हो। एंड एडवांस में यूज़ द लास्ट विजिटेड एंड रिफ्रेश, हमेशा रिफ्रेश होना चाहिए। ये इसका मतलब ये होता है, अगर तुम्हें मैनुअली कुछ असाइन करा तो आप मैनुअली कुछ असाइन कर सकते सेलेक्टेड लास्ट नोड में, अगर नहीं है तो जस्ट रिमूव दिस, यू डोंट वांट टू असाइन एनी मैनुअली असाइन वेरिएबल्स। एंड इसका मतलब होता है कि सपोज कर लो कुछ डेटा रिफ्रेश हुआ तो आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिफ्रेश इनपुट ऑटोमेटिक, जब भी चीज़ कुछ बैकएंड में चेंज होगा वो ऑटोमेटिकली डेटा रिफ्रेश होकर आएगा। तो रिफ्रेश टू वन, ये रिफ्रेश करो तो डेटा जब भी चेंज होगा तो रिफ्रेश होकर आएगा आपका डेटा, ओके। ओके, क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन, देन मैंने गेट अपॉर्चुनिटी किया, लूप लगा दिया, सॉरी डेटा टेबल डाल दिया। अब हाँ, एक चीज़ और बच गया, उस डेटा टेबल के अंदर मैंने डेट्स रिकॉर्ड और डिस्प्ले करा दिए, बट अपडेट मेरे रिक्वायरमेंट था कि मुझे स्टेटस भी तो अपडेट करानी है, तो मैंने नीचे आया, पिक लिस्ट सेलेक्ट किया, ड्रैग किया, पिक लिस्ट, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू एंड चॉइस, चॉइस में जब मैं क्लिक करूंगा न्यू चॉइस सेट, एंड इन द न्यू चॉइस सेट आई सेलेक्ट पिक लिस्ट चॉइस सेट, सेलेक्ट लिस्ट, ओके, एंड अपॉर्चुनिटी किसकी चाहिए, अपॉर्चुनिटी की चाहिए, सेलेक्ट पिक लिस्ट एंड स्टेज नेम, ठीक है। तो सारी पिक लिस्ट अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टेज नेम होगा उसकी सारी पिक लिस्ट पॉपुलेट हो जाएंगी, ठीक। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लिक डन। ठीक है, चलो, अब आपका नेक्स्ट प्लस पे करोगे, अब आपका लूपिंग चाहिए, क्योंकि जितने भी आपके सिलेक्शन रो होंगे उसको अपडेट भी तो कराना है। लूप देयर ROU, ठीक है। कलेक्शन वेरिएबल में क्या होगा, डेटा टेबल स्क्रीन, डेटा टेबल फॉर अपॉर्चुनिटी लिंक्ड विद अकाउंट एंड सेलेक्टेड रोज, जो आपने डेटा टेबल स्क्रीन के अंदर जितने आप सेलेक्ट करोगे, देखो मैंने व्यू ओनली नहीं डाला था, मैंने पिछले स्क्रीन पे मैंने मल्टीपल डाल रखा था, जितने आप सेलेक्ट करोगे वो सेलेक्टेड रोज आपका सेलेक्ट होता रहेगा और वो लूपिंग में जाएगा, क्योंकि जितने आप सेलेक्ट करोगे उसी को तो अपडेट कराना है, फर्स्ट टू लास्ट आइटम एंड दिस वन, करेक्ट, गॉट माय पॉइंट। अब मैं सिलेक्शन के बाद एक असाइनमेंट वेरिएबल लूंगा, ऐड रिकॉर्ड्स टू अ लिस्ट, ओके, वेयर अपॉर्चुनिटी आईडी। अब देखो 5 रिकॉर्ड आए थे उस अकाउंट, 5 अपॉर्चुनिटी की आईडीज आई थी, सपोज करो एक अकाउंट में 5 अपॉर्चुनिटी, जो कि मैंने पिछले बुलेट टेक्सचर कॉपरेशन में इसके अंदर 5 रिकॉर्ड आई थी, तो उस पांचों को मैंने एक लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बल्किफाइड करने के लिए, सो दैट मेरा ऑपरेशन फेल ना हो, इसलिए मैंने एक असाइनमेंट वेरिएबल लिया एंड सारे रिकॉर्ड को एक लिस्ट में रखूंगा, वेयर अपॉर्चुनिटी आईडीज ऐड करूंगा, कौन से जो अपने लूपिंग में जो आपने सेलेक्ट कर रखा था, लूप थ्रू रिकॉर्ड करेंट आइटम लूप थ्रू रिकॉर्ड्स, एंड इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी की जो आईडीज हो गई, या दिस अपॉर्चुनिटी की आईडीज हो गई, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। जब सारी चीज़ें लूपिंग में और लिस्ट में आ गई, अब बस मुझे अपडेट करानी है, दैट्स इट, अपडेट स्टेटस, ठीक है।
स्पेसिफाई कंडीशन टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, यानी कौन से स्टेटस अपडेट करें, अपॉर्चुनिटी में अपडेट करानी है मुझे। मैंने अपॉर्चुनिटी का कंडीशन आईडी इन ठीक है, आईडी इन वेयर अपॉर्चुनिटी आईडी जो आपने इसमें डाल रखा है। इसके बाद स्टेज नेम किससे अपडेट होना चाहिए, आपकी पिक लिस्ट वाली चीज जो अपने नाम रखा होगा, पिक लिस्ट स्टेटस ये ना, उस जो भी आपने पिक लिस्ट सेलेक्ट किया होगा उस पिक लिस्ट से स्टेज नेम को अपडेट हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। और ये जो लिस्ट में रखा है उसकी आईडी वो सारे लिस्ट में डाले, उसकी आईडी निकाल के लेके आएगी जितनी भी, और उसको जैसे ही लिस्ट में लेकर आके उसमें आईडी जो मैच होगा, जो आईडी इसके अंदर जो जितने पाँच आई है इसके अंदर, उस आईडी में 5 पक्का होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के सी सेम है। जो 5 होगा वो जाएगा इसमें स्टेज नेम में और उसको अपडेट कर देगा जो भी आपने सिलेक्शन कर रखा है। जस्ट सेव दिस एंड चेक वेदर इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन activate this. Let's go and check this opportunity. Okay, I refresh this and when I click this, go to edit page, just add the flow whichever you will have, which you have recently created. Just add this flow, go to flow, select this, give me a second, it's still loading. Yeah, okay, so display, okay, display records and edit टेबल, मैंने ये फ्लो में चेंज किया नाम इसका जो अभी रिसेंटली क्रिएट हुआ था, एंड पास रिकॉर्ड आईडी इनटू दिस वेरिएबल, जो रिकॉर्ड आईडी मैंने वेरिएबल में स्टोर कर रखा था अकाउंट आईडी, वो इसमें अंदर पास कर, तभी तो वो फेच करके लेके आएगा, गेट रिकॉर्ड में लेके आएगा आपके अकाउंट आईडी जो 5 लिंक्ड है, तभी तो वो लेकर आएगा। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। जस्ट सेलेक्ट सेव एंड चेक इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। ओके, सी हियर, या अपॉर्चुनिटी अमाउंट कुछ नहीं पड़ा है, सी कोई अपॉर्चुनिटी का अमाउंट नहीं पड़ा है, इसलिए नहीं हुआ। अब देखो मैंने जो कंडीशन सारे कंडीशन मीट कर रहा है। सबसे पहले मैंने जो डाल रखा था डेटा टेबल फॉर, यहाँ मैंने ये देखो इसके अंदर कितने थे, 1 2 3 4 5 होने चाहिए, बट मेरे पास आ रहे 4, 1 2 3 4, क्यों 5वां क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने कंडीशन वहां पर लगा रखा था इज क्लोज फॉल्स होना चाहिए। अगर वो ट्रू है, देखो मैं दिखा रहा हूँ ऊपर, मैंने ऊपर गया, क्योंकि ऑलरेडी ये तुम्हारा स्टेटस क्लोज वन है, देखो स्टेटस तुम्हारा क्लोज वन है, इस क्लोज हो गया, ये क्लोज हो चुका है, इसीलिए वो रिकॉर्ड यहाँ पर आया नहीं, जो ये वाली रिकॉर्ड है ये आया नहीं है। अगर वो हटा दोगे वो तो आ जाएगा बराबर, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, करेक्ट है। अब टेस्ट अपॉर्चुनिटी 2, टेस्ट अपॉर्चुनिटी 1 एंड टेस्ट अपॉर्चुनिटी 3, ये 4 अपॉर्चुनिटी आ गई, ठीक है। ओके, एंड इन सब का स्टेज वैल्यू प्रोपोर्शन आईडी डिसीजन एंड इंटर। सपोज करो मैंने सबको सेलेक्ट किया या मैंने सिर्फ 2 को सेलेक्ट किया। जब मैंने 2 को सेलेक्ट किया और मैं स्टेटस इसका अपडेट करना चाहता हूँ क्लोज 1 से, एंड जब मैं नेक्स्ट करूंगा, देखो क्लोज 1 ये दोनों मैंने सेलेक्ट किया था, अपडेट हो गया, बस ये 2 नहीं हुए अभी तक, टेस्ट अपॉर्चुनिटी 1 3। जब मैंने इस दोनों को भी सेलेक्ट करके स्टेटस मैं अपडेट करूंगा तो ये क्या होगा, दोनों क्लोज 1 भी हो जाएंगे। सो सी क्लोज 1 सो दिस इज हाउ
और यहाँ पर मैंने कोई अपॉर्चुनिटी लिंक नहीं है. सो दिस इज हाउ यू कैन update the record in your data table by your bulk updation. Okay, I hope you will like this video. Please hit like and subscribe my channel and stay tuned for the future updates, guys. And if you have any comments or query, please write down in the comment section. Thank you, guys.